Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to the chapter Polynomials for class 9th, subject Mathematics. Today's topic is we are going to solve question number 4 from the first exercise of the chapter Polynomials. This is exercise 2.1, question number 4. Write the degree of each of the following polynomials. तो हमारे पास polynomials हैं, हमें इन polynomials की degree लिखनी है. We have to write the degree of these polynomials. In polynomial, we know that it's an algebraic expression. Polynomial is an algebraic expression in which power of the variable is a non-negative integer. तो इन सबों में जो वेरिएबल का पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है. हम चेक कर सकते हैं, बिल्कुल नॉन नेगेटिव इंटीजर है. तो हमें इनकी डिग्री लिखनी है. चलिए जी, पहला पार्ट लेते हैं. लेट्स टेक फर्स्ट पार्ट. 5x raised to power 3 plus 4x square plus 7x. ये पॉलिनोमियल है, हमें इसकी डिग्री लिखनी है. और डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म जो होगा, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं. 5x raised to power 3, 4x raised to power 2, 7x. These are 3 terms, so this is trinomial. ये ट्राइनोमियल, इसमें 3 टर्म्स हैं. और हमें देखना है कि किस टर्म में सबसे ज़्यादा पावर है वेरिएबल का. यानी we have to find the highest power of the term, or we can say highest power of the variable. Variable is x here, x is also here, and x is also here. So if we see their powers, the power of x is 3, here the power of x is 2, and here the power of x is 1. So highest power is 3. Highest power is 3. Since the highest power is 3, therefore degree of this polynomial will also be 3. So see what we are going to write in the solution. The highest power of the variable, of the term, the highest power of the variable. वेरिएबल यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल हुआ है? x is 3. जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का, वेरिएबल हमारे पास x है, तो हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है. यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो हाईएस्ट पावर तो 3 है. द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x is 3. Therefore the degree of this polynomial, ये जो polynomial है, of this polynomial is 3. हमें इस पॉलिनोमियल का डिग्री लिखना था.
तो हमने देखा जो हाईएस्ट पावर है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल या हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो है 3, लिहाजा इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3. So we have written here the highest power of the variable x is 3, therefore the degree of this polynomial is 3. Second part is 4 minus y square. Okay, here the variable is y and its power is 2. So highest power of the variable y is 2. So the degree of this polynomial will be 2 because highest power of the variable is 2. So we will write the highest power of the highest power of the variable y is 2. Therefore the degree of this polynomial is क्या है, डिग्री इस पॉलिनोमियल का 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 है, इज 2. तो इस तरीके से हमारे 2 पार्ट सॉल्व हो गए. अब हम तीसरा पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट हमारे पास है 5t minus root 7 minus 5t minus root 7. तो इसमें वेरिएबल t है और t का जो पावर है वो 1 है. तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है 1, तो डिग्री भी 1 ही होगी. तो हम ऐसे लिखेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ the highest power of the variable यहाँ पे t इस्तेमाल हुआ है is 1. therefore the degree of this polynomial, यानी ये पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है, तो अब दिस पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर तो 1 है, तो डिग्री भी 1 ही होगी. द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1. Okay, these are the 3 parts. Now we have the last part of this question, that's 4th part. Fourth part is 3. तो हमें इस 3 की डिग्री लिखनी है, और डिग्री लिखने के लिए वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर है वही तो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की. सो 3 जो है
इसके साथ x तो नहीं है, मगर इसको हम x लगा सकते हैं, बल्कि x रेज्ड पावर 0 लगा सकते हैं। ये जो 3 है, दिस इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 3 इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 3 या कांस्टेंट टर्म भी इसको कहते हैं। 3 is a constant polynomial या constant term भी हम इसको कह सकते हैं, constant polynomial। Three is a constant polynomial. The degree of constant polynomial is always, ये याद रखना चाहिए, is always 0। 3 जो है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और जो डिग्री होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वो 0 होती है। तो यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो हमने कैसे कहा कि हाईएस्ट पावर 0 है, डिग्री 0 है? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बिकॉज इट कैन बी written in the form। ठीक है, हमने कहा कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो 0 होता है हमेशा। तो कैसे, हमें कैसे पता, इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, तो हमने कैसे देखा इसकी जो डिग्री है वो 0 है? क्योंकि हम इसको एक फॉर्म में ला सकते हैं। वो फॉर्म कौन सी है? हम इसको लिख सकते हैं 3x रेज्ड पावर 0। तो इसमें वेरिएबल मैंने लगाया, और वेरिएबल का पावर हमें 0 रखना है। सो द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस वेरिएबल इज 0, देयरफॉर द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 0। तो वही तो हमने लिखा, 3 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जो भी कांस्टेंट टर्म आप लिखोगे, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, all those are constant polynomials। 3 is a constant polynomial, और जो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है वो हमेशा 0 होती है। क्यों? क्योंकि हम इसको 3x रेज्ड पावर 0 फॉर्म की शक्ल में लिख सकते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि इसमें वेरिएबल x है और x का पावर 0 है, लिहाजा हम कहेंगे द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0। तो वही तो हमने लिखा, द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये चारों पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 के थे हमने सॉल्व किए। उम्मीद है कि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और अपनी नोटबुक भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।